The first question is what is meant by gas laws, एंड हमने उसको डिस्कस कल भी कर लिया था. What was gas laws, अली? और The उसमें भी दिया gas. हुआ V is हाँ. proportional to this factor. In easiest words ये था. एंड सेकंड, इसके अलावा हमने क्या डेफिनेशन की थी आइडियल गैस की? Gas that follows Boyle's law. या जो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को फॉलो करे. बेसिकली बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ दोनों के लिए याद है. This will give 2 marks. यस. If we talk to the point now, that would give us the marks. And T is a thermodynamic scale pressure. We can just add a few points into that. P is the pressure, V is the volume, and T is the thermodynamic scale in order to fill the lines. But in simple, this is what gas ideal gas is. That's how we define ideal gases. आइडियल गैस की एक और डेफिनेशन भी होती है, अली मैंने आपको करवाई थी. डू यू रिकॉल दैट? कौन सी? आइडियल गैस की डेफिनेशन एक और भी होती है. वो पी इक्वल टू एन आर टी बे करने वाली, या? नहीं नहीं, आइडियल गैस की डेफिनेशन प्रॉपर्ली क्या होती है? मैंने तो याद किया, गैस दैट obeys इक्वेशन पी वी एन आर टी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ Cool प्रेशर, gas. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. नहीं, भूलता नहीं है. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दैट फॉलोज आइडियल गैस लॉ. ये इसमें हाँ एक हाँ यही वाला पॉइंट था विच विच आई वाज फॉरगेटिंग दैट, विच फॉलोज आइडियल gas law. This is the second point you can add. PV is proportional to T and which follows ideal gas law. The second part is show that helium is an ideal gas. For that, again, we know that V is proportional to, uh, we could use the formula that we just discussed is equals to constant into T. So अगर हमारे पास जो है फैक्टर उसमें फॉलो अप होता है, so we can go for that. Cause यहाँ से PV over T किसके इक्वल आ जाएगा? Is equals to constant. If we put the values, pressure is 1.10 sorry into 10 raised to power 5. V is 540 centimeter cube. तो उसके यूनिट्स हम वहां पे प्लेस कर देंगे. दैट वुड बी 10 raised to power -6. एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में करना है तो 27 + 273. दिस वुड गिव अस अ कांस्टेंट ऑफ 0.198. सो अगर ये भी प्रेशर एंड वॉल्यूम वही वैल्यू दे देगा, सो दैट मीन्स इट्स फॉलोइंग द लॉ. सो लेट्स पुट दैट. गेट रेडी. मैंने से वो उसकी वैल्यू निकाली थी, अपने कैलकुलेटर रेडी रखो. 6.70 10 power 6 multiplied by 13 10 power -6 divided by 742 plus 273. क्या आंसर आ रहा है इसका? Is it the same? हाँ वही है. 0.198. So this was P1, sorry, this was P2 V2 over T2, and this was P1 V1 over T2. So initial pressure and final pressure की values put करने से we're getting the same value of constant. That means helium is following the is an ideal gas because it's the values are constant. then उसने बोला है the Centimeter first law of cube to centimeter meter. cube to decimeter cube. अच्छा meter cube. मैंने put किया है ना उसको 10 raised to power -6. That's for Okay. centimeter cube. To meter दोनों cube. जगह पे put किया मैंने. Yeah, to make it into पूछ रहा meter हूँ. cube. Okay. Yeah. Then we have कम आइडियल गैसेस की बात करें तो we have to go to SI units ना, ताकि फॉलो अप कर सकें हम उनको तमाम चीज़ों के अंदर. कॉज जो गैस कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं आइडियल गैस, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी था,
उनकी वैल्यूज को भी तो इन कंसिडरेशन से आ जाना, आर जनरल गैस कांस्टेंट। Anyhow, the first law of thermodynamics may be expressed. Use the law of thermodynamics to explain why the temperature of the helium gas increases. Why the temperature increases? Because work is done on the gas, so internal energy increases. As we know, internal energy is proportional to temperature. So if internal energy increases, this means temperature would increase as well. Then we have the average energy given calculated change in the molecule of the helium gas. The average translation calculate the change in kinetic energy. We have a formula. PV is equals to NKT. We have the value of pressure, volume, constant, and temperature. Let's find out the value of N. P की वैल्यू क्या थी 1.10 10 raised to power 5 multiply by volume was 540 into 10 raised to power minus 6 over Boltzmann constant की वैल्यू क्या होती है 1.38 into 10 raised to power minus 23 and temperature was 27 ना 27 27 plus 273. From there, we get the value of N as 1.43 into 10 raised to power 22. Okay. So we don't subtract the temperatures. Temperature of what? The temperatures changed, right? वो हम एनर्जी चेंज पे थोड़ी अभी पहुंचे, अभी तो हम सिर्फ एन की वैल्यू कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए। वो क्यों कर रहे हैं? तो पुट इन द फॉर्मूला टोटल एनर्जी चेंज फाइंड आउट करनी है ना हम लोगों ने। Okay. एन की वैल्यू आ गई एंड इसके अंदर हम लोग पुट कर दें इस फॉर्मूला के अंदर, हमें एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है तो हमें टेम्परेचर चेंज भी चाहिए होगा। ओके, 3/2 के की जगह पे 1.38 इंटू 10 raised to power -23 आ जाएगा। टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करेंगे विच वुड बी 742 -27, ये टेम्परेचर चेंज आ गया हमारे पास इनटू एन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1.43 इंटू 10 raised to power 22, ये वाली वैल्यू, दिस वन। उसने कहा था कैलकुलेट द चेंज इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीलियम। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया ई के इक्वल्स टू 3/2 इंटू एन के डेल्टा टी। सो एन हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, उसको फॉर्मूला में पुट किया, अब आंसर निकालो उसका क्या आ रहा है। 3/2 इज आई गेस 1.5 होता है, 1.5 इंटू 1.38 इन टेन पर -23 की जगह पुट कर दो उसको। Because हमें टोटल एनर्जी निकालनी थी, फॉर दैट वी नीड द टोटल नंबर ऑफ 210 मॉलिक्यूल्स आ रहा ऑफ है। हीलियम। सॉरी 210 210 10 joules सर इसमें and am हम I PV getting इक्वल्स NRT यूज कर सकते हैं? nRT जनरल गैस कांस्टेंट, लेकिन हमने उसको फाइनलाइज तो उसमें ही किया ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, आर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके लिए निकालनी है ना, लैदा करनी है। और ने के मेंशन किया हुआ है इसलिए। ओके। हाँ
क्योंकि जो एन होता है ना वो आपको पता है कि वो वाला जो आप एनआरटी वाला एन बोल रहे हो ना वो स्मॉल एन होता है, दैट स्मॉल एन इज इक्वल्स टू, जो आप बात कर रहे हो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हियर एन इज एन ओवर एवोगाड्रोस नंबर। तो वो बेसिकली आर और एन ए को रिप्लेस करके उसमें आता है, चूंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, बेसिकली बनता तो वही फॉर्मूला क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो एनआरटी को अच्छा। हमें इवेंचुअली उसमें कन्वर्ट करना ही पड़ना into this ओके। formula. Then we have the mass of nitrogen uh, is 24 grams at room temperature of 27. The gas is cooled to its boiling point. Assuming all the gas condenses to liquid, for this change, the specific capacity of the nitrogen is 1.404 kilojoules per kilogram into Kelvin. The specific latent heat is this. Determine the change in energy. Okay, जी. डिटरमाइन ऑफ चेंज इन एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेट्स चूज, लेट्स गो देयर। ओके, क्या फॉर्मूला यूज होगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी एंड एमसी डेल्टा थीटा एंड एमएल दोनों ही अटैच होंगे उसके अंदर। टेम्परेचर डिफरेंस उसने हमें क्या दिया हुआ? टेम्परेचर 27, टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे 196 एंड 27 आरडी हो जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे तो वो बेसिकली एड अप हो जाएगा। और ओके, डिटरमाइन द थर्मल एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, तो टोटल थर्मल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा प्लस एम एल। एम सी 24 डिवाइड बाई 1000 वुड गिव अस 0.024, C is 1.04 into 10 raised to power 3, and theta is 27 plus 196 plus m again 0.024, and L value is 199 into 10 raised to power 3 kilojoules per kilogram. Okay, get me the answer. सर उनको ऐड क्यों कर रहे हैं? टोटल थर्मल एनर्जी उसने कैलकुलेट करने को बोला है, गेन एंड लॉस्ट जो दोनों में होगा, रिमूव फ्रॉम द नाइट्रोजन गैस। ओके। ये जो एडिशन वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है ना, तो वी नो दैट के एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म अनदर, ठीक है। सो क्यू हमारे पास टोटल, क्यू इज इक्वल्स टू ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों एड अप होंगे तो थर्मल एनर्जी हमारे पास निकलेगी ना, हाँ। in order to condense it to that part। चेंज ऑफ स्टेट भी हुआ तो उसमें जो उसकी लेटेंट हीट था ऑब्वियसली वो भी ऐड होना था, एंड जो उसका टेम्परेचर चेंज आया 27 से माइनस वो 196 के ऊपर, तो टेम्परेचर चेंज वहां से भी आ रहा था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फैक्टर भी उसमें ऐड अप होना था। तो टोटल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हमने जब निकालनी थी तो उसी में पुट इन होनी थी। Anyhow, the next part is define specific heat capacity. We already have discussed that in the topic. Next part में उसने क्या show that पर the सर magnitude उन्होंने of the स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और रेशमी तो वेपराइजेशन दिया हुआ है, हाँ फिर कैलकुलेट करने की जरूरत थी? C, उसने C और L दिया हुआ है, हमें हीट्स कैलकुलेट करनी थी, ओह या, हमने ओके ओके। हीट्स कैलकुलेट की हैं, हमने स्पेसिफिक हीट्स और वो नहीं वैल्यू कैलकुलेट। ओके। Define specific heat capacity. We have discussed it. We know in the previous we have discussed that P delta V के इक्वल होता है हमारे पास। So यहाँ पे हमारे पास mass given है, energy given है, change of volume given है, pressure given है, and temperature given है। So for now उन्होंने हमें just क्या फाइंड करने को बोला है? वर्क डन
तो प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × 10⁵ और डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, तो वो क्या बनेगा, 0.063 माइनस 0.038। आंसर निकालो क्या आ रहा है इसका। यही 5,000 आ रहा है। हम्म ओके, 5000 joules। उसने क्या, स्टेट वेदर द वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive, temperature increases. गैस की क्या हुई है, टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 56, तो एक्सपेंशन होगी हमारे पास, ठीक है। जी। एंड गैस व्हेन एक्सपेंशन अकर्स, expansion occurs, that would tell us that gas has done some work for the expansion of that, और जब सिस्टम वर्क करता है, और हमने स्टार्ट में लिख दिया है, उसने पहले ही बोल दिया है कि वर्क इज डन ऑन, But they're saying work is वर्क, done on the gas. हाँ, सो वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। By the gas is positive and on the gas is negative। रिमेम्बर कल का लेक्चर, हमने कहाँ सिस्टम्स बनाए थे, यहाँ बनाए थे। Work done on the gas is negative, by the gas is positive। ठीक है। Mm. So when work is done on the gas, लिखा है whether work done on the gas is positive or negative। When work is done on the gas, this is going to be negative, and टेम्परेचर भी ऑब्वियसली हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो थर्मल एक्सपेंशन भी होगी, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। देन उसने हमें बोला हुआ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूज होगा हमारे पास। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या निकली थी, 7600। क्यू हमें कैलकुलेट करना है, एंड एज वर्क इज डन ऑन द गैस, तो नेगेटिव का टर्म इसमें आएगा, तो 7600 प्लस 5000 इक्वल्स टू क्यू। 5 and 7 13, 13 समथिंग बन जाएगा, नहीं 5 and 7 13 नहीं, सॉरी 12, 12600 बन जाएगा। जी। 12600 जाओ। Then what do we have next is फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ था, ऊपर ही दिया हुआ था, हमने बस उसी को ही यूज किया है। मैं जस्ट आपको ऊपर इसलिए लेके गया सो दैट आई कुड शो यू कि फॉर्मूला वाज गिवन ऑलरेडी, ठीक है। Here, Yeah. जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q ओवर M इंटू डेल्टा टी। M उसने हमें कितना दिया हुआ था, 0.35 किलोग्राम्स, एंड Q हमारे पास कितना है, अभी अभी हमने निकाला, 12600 7,000। डिवाइडेड बाय 0.35 इनटू टेम्परेचर चेंज हमारे पास कितना आ रहा है, 56 आया था हमारे पास। तो पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला, व्हाट आर वी गेटिंग, 642, 643. 642 है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम किस में लिख देंगे, हमारे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 2, तो 640. हम इसको 640 कर देंगे इसको। यूनिट्स दिए हुए नहीं, स्पेसिफिक हीट का होता है जाउल्स पर किलोग्राम इनटू केल्विन।
Then we have the gas is now heated at a constant volume rather than at constant pressure. The increasing internal energy of the gas is same in P. Use the first law of thermodynamics to explain whether the specific heat capacity of for this purpose is less or more. अच्छा, सबसे पहले तो हम उनके पॉइंटर्स ले लेते हैं कि if internal energy is same, that means temperature is same. Okay, first point. Okay. If temperature is same, No work is done. no work is done. Good. Because no change in volume. Because अगर हम लोग टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी, तो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है. So this would mean कि less thermal energy would be required as that of before. Good job, Arham. Then we have नहीं N. N is सर, number of लास्ट पॉइंट molecules. एक्सप्लेन कर लें. Which one? The last heat capacity will be less. बल्कि उसने specific heat capacity की में बात बोली है. So less thermal energy is required. So this would mean less specific heat capacity. If you guys recall the O levels concept, तो O levels में भी हमने ये concept पढ़ा था. The objects with higher specific heat capacities take longer to heat up and cool down as compared to the ones which have low specific heat capacity. तो वो concept भी यहाँ पे put in हो सकता. Okay. देन हमारे पास n उन्होंने पूछा हुआ था. m हमारे पास किसको शो कर रहा होता है? मास ऑफ द गैस को शो कर रहा होता है. एंड I really hate it when I lose my pointer. Number of molecules, mass of gas, and the last is, ये हमने कल भी पढ़ा था, average, क्या कहते हैं इसको? Mean squared speed. Yes, mean squared velocity. एवरेज भी लिख सकते हैं, मीन भी लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, दोनों टर्म्स इसमें यूज हो सकते हैं. यूज द इक्वेशन to state that the average transition kinetic energy of the molecule to gas thermodynamic scale is given by this. तो ये हमें पता है इक्वेशन क्या थी. What was the equation? E उसने दिया हुआ 3/2 k into t. We have PV is equals to NKT. एंड पी की इक्वेशन हमारे पास एक और भी होती थी, 1/3 v इंटू एम इंटू सी स्क्वायर. तो यहाँ से पी वी, सॉरी, 1/3 v मैंने ऊपर लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया. इसको अभी सेट कर लें वरना फिर ये 1/3 एन वो वी होता था ना हमारे पास इक्वेशन के अंदर. तो हाँ, अब हम यहाँ से पी वी किसके इक्वल आ जाएगा? n/3 इंटू m इंटू सी स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशंस आपस में हम इक्वेट करें तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी n कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? के टी इक्वल्स टू m सी स्क्वायर. 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सॉरी, आई मिस वन पार्ट अगेन. ये वाला 3 भी तो था ना. सो ये m/3 वाला पार्ट ये रह गया. ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. 3/2 k इंटू टी इक्वल्स टू 1/2 m इंटू सी स्क्वायर. अब हम इस फैक्टर को अगर हम अंदर मूव कर दें, सो 3/2 के टी
equals to average kinetic energy. सॉरी मैंने ET लिख दिया. Then the B part is हमें क्या कैलकुलेट करना है? Determine the three sigma temperature of the surface of the star. तो values हमारे पास given है. Let's put that in the equation. मास उसने हमें दिया हुआ है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 3.34 into 10 raised to the power minus 27 into 93,100 square is equals to 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या थी? 1.38 into 10 to the power 23 एंड टी हमें कैलकुलेट करना. रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय 3 इंटू दिस फैक्टर. टी की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रही है? $7,000 आ रही है. कितनी आ रही है? 7,000. हाँ तो उतनी बननी है, सरफेस ऑफ स्टार टेम्परेचर ही है ना. हाँ बट उसने 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है, तो क्या पूरी राउंडेड 7,000 आ रही है? जी. 7,000 तो वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहाँ से बन जाएगा ना. तो सिक्स व्हाट आर यू नाइन टेलिंग? एट जीरो आंसर क्या बता रहे हो? 6,980. हम्म. हम्म. सर, जो आप डेरिवेशन कर रहे थे ना, ये टू कहाँ से आया? कौन सा 2? KT equals 2/2 m. Then we have state what is meant by internal energy. Internal energy को हम कैसे define करते हैं? Sum of potential energy and kinetic energy of a sum of kinetic energy and potential energy that the system possesses. Then we have used the first law of thermodynamics to explain what happens to the internal energy of a spring when it is stretched at constant temperature within elastic limit. हाँ जी. फिर at constant temperature तो उसकी internal energy भी क्या रहेगी? Same. Yes. नहीं, at constant temperature But work is इंक्रीज being नहीं done. होगी. तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ना, हाँ तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी हाँ. जी. क्योंकि हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना. वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, सो इंटरनल एनर्जी वुड इंक्रीज. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करेगा उसकी वजह से. जब स्ट्रेचिंग होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, सो दैट वुड इंक्रीज. Second है of a sample of water when it evaporates from a rain puddle on a evaporation हो रही है, rain puddle है on a hot day. So again thermal energy is transferred to water. Energy is transferred. It expands, so work is done by So the gas. so work is done by the water, due to which the kinetic energy of the particle increases, and when the kinetic energy of the particle increases, so does the internal energy, क्योंकि एक्सपेंशन भी Volume हो रही है ना उसके increases, अंदर. right? So work is done by the water, expansion occur,
So internal energy would increase. Then हमारे पास क्या है? A fixed mass of an ideal gas is V and the pressure. The gas undergoes a cycle of changes x to y, z to x as shown in the figure. Table shows the data of P and V, the temperature of the constant. State the change in internal energy of one complete cycle from x to y to z. और अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कंप्लीट साइकिल में टोटल एनर्जी बिकम्स zero. Calculate the amount of n of the gas. PV is equals to NKT का फॉर्मूला लगा देते हैं. PV is equals to nRT का भी वैसे लगा सकते हैं. यहाँ पे nRT लगा लेते हैं क्योंकि हमसे हमें n कैलकुलेट करने का बोला है. P की वैल्यू इज 1.5 into 10 raised to power 5. V की वैल्यू इज 4.2 into 10 raised to power -3 divided by जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 8.3 ना? 8.3 एंड टी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 540. क्या आंसर आ रहा है इनका? 41,000. 41,000. वैल्यूज प्रॉपर्ली पुट कर रहे हो कि नहीं? 0.1 1.1 10 raised to power 5, 4.2 10 raised to power -3, 8.3 and 540. 0.14. 0. तो पहले 14,000 की बोल रहे थे. अजान चल रही है. सबसे पहले पीवी इक्वल्स टू एनकेटी का फॉर्मूला लगा के हम लोग जो है पीवी ओवर टी इक्वल्स टू कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा के पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. पीवी उसने हमें दिया हुआ 1.5 into 10 raised to power 5 into v which is 4.2 into 10 raised to power -3 divided by temperature which is 540. अली मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दो कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल रही है? 706 1.17. 1.17. 7.17. 1.17. ओह 1 पॉइंट. तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, गुस्सा तो नहीं कर रहा. अली गुस्सा कर रहा था ना ये? जी नहीं कर सर. रहा था अली. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल 1.17. ओके. अब हमारे पास जो है इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है वेयर एज ओनली टेम्परेचर इज गिवन. और उसने वाई पॉइंट का फाइंड आउट करने को बोला. उसने किसका दिया हुआ है? एक्स का. तो एक्स का है तो इट मींस उसका वॉल्यूम की वैल्यू नहीं, सॉरी, प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी है ना? जी के लिए तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नहीं, हम इसके लिए पी वाई है ना, तो एक्स टू वाई जाते हुए प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही है, वॉल्यूम सिर्फ चेंज हो रहा है. कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम लोग उसको पुट करके पी की वैल्यू प्रेशर कैलकुलेट वही लिख कर सकते लेंगे. हैं हम. सॉरी, हाँ प्रेशर तो हमारा वही रह जाएगा 1.5 और उसके हाँ. रिस्पेक्ट से वॉल्यूम निकाल लो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए. वॉल्यूम अब किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर. So time की value is temperature is 230, constant is 1.17 and divided by pressure which is 1.5 into 10 raised to power 5. तो क्या वॉल्यूम क्या निकलेगा? देखो 1.8. 1.8 और पावर 10 हाँ. -3 आ रही है. जी. चलो 1.8 रेज़ पावर 3 एंड z के अक्रॉस वॉल्यूम की वैल्यू अगेन सेम ही रहेगी क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम है फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम y टू z. तो यहाँ पे भी हम लोग 1.8
8 ही नोट डाउन कर लेंगे। कंप्लीट द वर्किंग हो गया हमारे पास। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, क्यू हीट होती है, एंड वर्क इज द डब्ल्यू इज द वर्क डन। एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू चेंजेस फ्रॉम टू द चेंज z टू x। z टू x जाते हुए उसने हमें क्या कहा है? z टू x जाते हुए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, which means at constant pressure, pressure is constant, नहीं pressure भी डिक्रीज कर रहा है। हमारे गैस पास एक्सपेंड्स। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड z टू x जाते हुए टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है हमारे पास। हाँ। So volume is, that means volume is increased, which means work is done by the gas, because cyclic process है, total internal energy zero थी। तो नहीं नहीं, हम तो अभी z टू x जस्ट जा रहे हैं ना। सो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज करेगा, वर्क इज डन बाय द गैस, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, बिकॉज 782 टू 540 आ रहा है हमारे पास। सो एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो द इंटरनल एनर्जी वुड डिक्रीज। ओके। 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 Volume increases, work is done by the gas, which means, and we can see from the table that temperature is decreasing, so the internal energy is decreasing. State what is meant by ideal gas. Next question, ideal gas, we know that PV equals to constant, और second point मैंने बता दिया, which follows ideal gas law। उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट n ऑफ द गैस। वी हैव वॉल्यूम, वी हैव प्रेशर, वी हैव टेम्परेचर। पीवीसी का एन के टी का ही फॉर्मूला लगा देंगे फिर हम लोग यहाँ पे, सॉरी एनआरटी का। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसने आर कैलकुलेट करने को बोला है। प्रेशर इज 1.2 इंटू 10 to the power 5, 10 to the power 5 into volume, which is 0.24, divided by general constant 8.3, and temperature is 17 plus 273 कितना हो जाएगा? 280 है ना? 280 नहीं, 290, सॉरी। पुट आंसर करो, इज आंसर निकाल। 12। 12 आंसर। हाँ। 8.3 into 290, so 12 मोल, because m में number of moles बता रहा होता है। The gas undergoes the three successive changes into this. The initial state is represented by A. The gas is cooled at constant pressure to point B by the removal of 4.48 kilojoules of thermal energy. The gas is heated at constant volume to point C. Finally, the gas expanded at constant pressure back to its original volume at A. During the expansion, the gas does 31.6 kilojoules of work. Show that the magnitude of the work is 19.2 kilojoules. तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पी डेल्टा वी। वॉल्यूम्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। एक वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है यहाँ पे? 0.24, एंड ये क्या बन रही है?
क्या यही ले लेते हैं 0.8। तो प्रेशर की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर? कांस्टेंट प्रेशर 1.2 है। 1.2। 1.2 कांस्टेंट प्रेशर 1.2 टू द पावर ऑफ 10 5 इंटू डेल्टा वी करेंगे तो 0.24 माइनस 0.08। जी वही आ चेक रहा है। करो क्या 19 सेम सेम। 1900 जॉब्स। जी 19,200। 19,200 तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 19 किलो जॉल्स बन जाएगा। ठीक है। देन वी हैव again we have to complete the table. Work done on gas, thermal energy is given, increase in internal energy. A to B. A to B तो हमने अभी भी कैलकुलेट कर लिया है। वो क्या बन रहा है हमारे पास? 19.2 and increase in internal energy A to B क्या होगा? $28। डेल्टा U की वैल्यू पुट करें ना, क्या बनेगा? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W था हमारे पास फॉर्मूला। -48 प्लस 19.2 कितना बन जाएगा? -28.8 -21। -22.8। बी टू सी हमने कैलकुलेट करना है। तो बी टू सी हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, विच मींस नो वर्क नो इज वर्क डन, डन। तो वो जीरो हो जाएगा। एंड और वो दोनों चीजें आपस में इक्वल आ जाएंगी, डेल्टा यू एंड क्यू। और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आई थी वही वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी 28.8। फिर है हमारे पास वर्क डन इज दिस। हमें थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करनी है फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए वो वापस आ रहा है विच मीन्स उसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? जीरो। सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। एंड अगर ये फैक्टर जीरो पुट कर देते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, और अगर माइनस का फैक्टर उसमें पुट कर दें तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 31.6। जीरो क्यों है? बिकॉज वो वापस जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस एंड हो गया ना, सी टू ए। हाँ ओके। ये देखो ना, ये हमने हाँ पहले ये साइकिल। देखा, अब वो सी टू ए इट हैज कम बैक टू इट्स पॉइंट ना, तो उस बेसिस पे तो हमने वही इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए वहां पे सारी वैल्यूज पुट इन कर दी। Then we have specific latent heat of vaporization. We have discussed the definition before. उसकी definition हम लोगों को आती है। Calculate the thermal energy. Pressure उसने दिया हुआ है। Specific latent heat दी हुई है। Mass दिया हुआ है। Temperature दिया हुआ है। Calculate the thermal energy for that. क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे? ml। Q is Q is equals to ml का फॉर्मूला लग जाएगा। m की वैल्यू क्या है? 0.37 टाइम्स 2.3 इंटू 10⁻⁶। तो क्या आ रहा है q की वैल्यू? 850,000। तो 8.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 grams. Assume that the water vapors can be considered to behave as an ideal gas. Show that the volume is 0.64 into this. तो 18 ग्राम्स हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? ये 37.37 किलोग्राम था।
तो ये ग्राम्स में कितना बन जाएगा 370 ओवर इट्स मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे हमारे पास। निकालो क्या निकल रहा है, 370 ओवर 18, 20.6। 20.6। जी। 20.6 पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी कैलकुलेट करना है हमें, तो एन की वैल्यू 20.6, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर उसने कितना दिया हुआ है हमें 100 डिग्री सी, तो +273 बन जाएगा 373 ओवर प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने हमें, हमारे पास कितनी थी 1 × 10⁵ वॉल्यूम कैलकुलेट यही करें क्या याद आ है। रहा है, सेम। 0.64. Okay. And then we have assumed that the initial volume of the liquid is negligible compared with the volume of the vapor to determine the magnitude of the work done. So अगर उसने हम volume is same, तो W is equals to P delta V का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। P की वैल्यू 1 × 10⁵ था एंड V की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 0.64। मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ रहा है, आई गेस 6.4 बन जाएगा। 6.4 to the power of 4 joules work done. Use your answer in B2, B1 and B3 to determine the increase in internal energy. If ये हमारा work done ये है and ऊपर हमारा work done क्या निकला था 8.5, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है, यूनिट्स बराबर कर लेते हैं। वो 8.5 इंटू 10⁵ था, ये 6.4 है, तो हम इसको कर लेते हैं 0.64 इंटू 10⁵ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्या आंसर आ रहा है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग आएगी। जी 7.86। 7.886 इंटू 10⁵ जाउल्स, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है तो 7.9 इंटू 10⁵ जाउल्स हो जाएगा। सो एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। एक्सप्लेन योर रीजनिंग में उसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि एज वाटर इज डूइंग द वर्क, सो वर्क डन ऑन द वाटर इज नेगेटिव, तो दैट इज व्हाई हमने इन दोनों को इंक्रीज इंटरनल एनर्जी वुड बी गिवन एज 7.9 × 10⁵। Next question again, use the first law of thermodynamics suggest with the reason how the specific latent heat of vaporization of water at a pressure greater than atmospheric pressure compares with its value at atmospheric pressure. तो formulas हम कौन कौन से in use ला सकते हैं? Or is it the same? Because it's the amount of energy needed. नहीं, उसका उसने ये बात किया है ना, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, Q इज इक्वल्स टू ml, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम है एंड और उसने कोई हमें किसी चीज का वो नहीं बोला हुआ कुछ वो, सो अगर प्रेशर इज बिगर तो वर्क डन की वैल्यू भी ऑब्वियसली ग्रेटर आएगी एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एंड अगर हमारे पास ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मोर वर्क इज डन ना ऑन द गैस, तो ये दिस विल बिकम मोर नेगेटिव, सो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा, ये वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा हो जाएगा एंड क्यू इज इक्वल्स टू एम एल है, तो क्यू वुड बी प्रोपोर्शनल टू एल इन अ वे, क्यू की वैल्यू बिगर आएगी, सो एल वुड बी बिगर, ऐसे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा।